This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you daily highlights of the 38th National Games 2025. 38th National Games, Uttarakhand. The change of seasons is inexorable, and here in Uttarakhand, winter is giving way to mellow spring as the chill at night becomes bearable and the glare of the sun increases in the afternoons. They say spring is the season of new births and new beginnings, and the sporting landscape of this breathtakingly beautiful state is on the cusp of a new birth as well through the national games. While heavyweight services Karnataka and Maharashtra continue to dominate the medals tally, host state Uttarakhand has put in a spirited performance on all fronts to find pride of place in the upper echelons of the leaderboard. Hello and welcome to our daily highlights of the 38th National Games. This is Shaurya Chaudhary, your host for tonight. Today was day 13 of India's premier multi-sport event, and it proved unlucky for some of our medal contenders while fortune favoured the others. While some sports such as boxing and archery had already wrapped up, others such as table tennis were only beginning. As many as 22 gold medals were on the line across the state in disciplines such as shooting, modern pentathlon, fencing and athletics on 9th February. Let's get into the details. Athletics is often the focal point of multi-sports events. Yesterday, a games record was set in 10,000 meters and one matched in the 100 meters in the men's competition on the track. 10 finals were scheduled today. Tenjem Tibba was our man on the spot. The athletics competitions held today at the Kanga Athletics Stadium, MPSC Dehradun, featured an exciting lineup of events, divided into a morning session for preliminary heats and decathlon events, and an afternoon session featuring finals across multiple categories. The finals of multiple events were conducted in the afternoon session, with outstanding performances in various categories. The results of key events are as follows. In the men's 110 meters hurdles finals, Tejas Ashok Shirsi of Maharashtra took the gold. It just means that this is my season opener and I just want to be consistent and build up from here. Manav Rajan Narayan of Tamil Nadu won the silver, and Mohammad Lazan of Kerala won the bronze. In the men's pole vault finals, Yaman Deep Sharma of Rajasthan won the gold, Rohit Roman of Andhra Pradesh, Gokul KR of SSCB, and Tofik N of Kerala won the silver, while Jaspir Nayak of Odisha won the bronze. In the women's 100-meter hurdles final, Jyoti Yaraji of Andhra Pradesh won the gold, Momita Mondal of West Bengal won the silver, and Nithriya Ramraj of Tamil Nadu won the bronze. In women's javelin throw finals, Jyoti Ragesh of Haryana won the gold, Karisma S. Sainal of Karnataka won the silver, while Ramya Shri Jain of Karnataka won the bronze. In the women's 400-meter run final, Aishwarya Mishra of Maharashtra won the gold. I'm very happy and I'm very pleased that I have run my personal best starting with the season and hoping a very good season ahead. Thank you. Vidya Ramraj of Tamil Nadu won the silver, and Divyaniba Zala Gujarat won the bronze. In the men's 400-meter run final, Babi Hansta of Odisha won the gold. बहुत खुश बहुत अच्छा लगा मेरे को पीबी हुआ हमारा और इधर का अल्टीट्यूड और वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा गया मैं खुश हूं इसके. Vikram Panchal of Haryana won the silver. Manu TS of Kerala won the bronze. In the men's 4x100-meter relay finals, Team Odisha won the gold, Team Tamil Nadu won the silver, and Team Kerala won the bronze. In the women's 4x100-meter relay, Team Karnataka won the gold. We are very happy because I think this is the first 4x100 gold. Team Kerala won the silver and Team Telangana won the bronze. In the women's long jump final, Momita Mondal of West Bengal won the gold, Sandra Babu of Kerala won the silver, and Dipanshi Singh of Uttar Pradesh bagged the bronze. In the men's high jump final, Adarsh Ramji of Tamil Nadu won the gold, Swadhin Kumar of Odisha won the silver, while Sudeep of Karnataka won the bronze. The day's events concluded with remarkable performances, showcasing the talent and determination of athletes from across the country. The competition at the Kanga Athletic Stadium proved to be a thrilling spectacle for both participants and spectators alike. While the pistol and rifle shooting events took place in Dehradun, trap and skeet shooters headed to Rudrapur in Haldwani to test their mettle and aim. Here's Pratishtha Jain telling us who found the mark in the men's and women's trap events. शूटिंग कौशल के साथ मानसिक दृढ़ता का खेल है। हवा में तेजी से उड़ते हुए टारगेट को सटीक निशाने से भेदना आसान नहीं होता, लेकिन आज हमने रुद्रपुर में शूटिंग के ट्रैप मुकाबलों में बेहतरीन शूटर्स को इस चुनौती का सामना करते हुए देखा। मेंस कैटेगरी में आशा के अनुसार पृथ्वीराज टोंडेमन ने गोल्ड जीता।
Day was very good. Can't get better. I won the gold medals as expected, and also I'm very happy about it. The National Games is an important tournament, and it's a very lovely tournament to be a part of. The year has started now, so we'll start working towards winning a quota first and then representing India at the Olympics. राजस्थान से अली अमन इलाही ने अपने शानदार प्रदर्शन से रजत पदक अपने नाम किया। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बहुत खुशी हो रही है। कहीं कोई मलाल नहीं है इस चीज़ का। सही था, अच्छा था कंपटीशन बहुत। आई डिडंट लैक ओवर। वहीं उत्तराखंड के आर्यवंश त्यागी ने ओलंपियन कायनन चेन्नई को पिछाड़ के ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। I've been shooting well, but somewhere in the finals I lagged in the last few targets. I missed 4 in a row, and I ended up with a bronze. I could have done better there, so that's all. विमेंस कैटेगरी में गुजरात राष्ट्रीय खेल 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट ने इस बार भी गोल्ड हासिल किया। जीत से बेहद खुश और अपने आगामी लक्ष्यों के बारे में बताती नीरू ढांडा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक टारगेट के लिए फाइट की है। अंदर से फाइट करने का था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतनी अच्छी रेंज है, तो मेरे को मौका मिला था जीतने के लिए। आगे मैं 2028 में ओलंपिक में पोडियम गोल्ड के साथ आना चाहती हूँ इंडिया। दिल्ली की कीर्ति गुप्ता रजत पदक जीतकर भी बहुत खुश थी। बहुत एलेटेड, बहुत ही टफ फाइनल था। द वेदर कंडीशंस आर सो हॉट राइट नाउ। उसके अलावा भी हमने बहुत फाइट करी, बिल्कुल वॉरियर्स की तरह फीलिंग आ रही है अभी। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, नो फॉर श्योर। हरियाणा की आशिमा ने अर्जुन अवार्डी श्रेयसी सिंह को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। I'm feeling really happy. Like in spite of a few misses in the beginning, I came back stronger. In the starting, it was like all about the hold points, so I was confirming the hold points. But yeah, when I got to know where to keep my gun, then it became easy for me. इस प्रतियोगिता में बंदूक की आवाज नहीं बल्कि एकाग्रता की गूंज थी। हर खिलाड़ी अर्जुन की तरह अडिग था। हर शॉट साधना का प्रमाण था और हर निशाना केवल अंकों की गिनती नहीं बल्कि सालों की तपस्या की मिसाल थी। आगामी दिनों में भी यही जुनून स्कीट के मुकाबलों में देखने को मिलेगा। Modern pentathlon has been capturing the eyeballs in Rudrapur with its scintillating mix of sports. Uttarakhand claimed all medals on offer yesterday. But who mastered the triathlon today? Muammar Imsong was in attendance. Today in the modern pentathlon event, triathlon competition was held. Triathlon is a unique blend of 3 sports, shooting, swimming and running, where the athletes are tested not only in their endurance, but their mental focus and agility as they race against each other in this fast-paced, multidisciplinary event. There were altogether 5 gold medals at stake in today's competition. The individual event included 5 rounds of 600-meter run, 4 rounds of 50-meter swim, and 4 rounds of shooting from a distance of 10 meters. Shravani Jaydeep Nilwarna of Maharashtra clinched the gold in the women's individual event with a time of 18.57.27. Shravani. I had been the most minor one with completed 15, but I made to the gold. That is very proud for me and my family and my teammate also and my coach like Ahilya Chavan, Shekhar Khasnish, Harshad sir and Harshada ma'am. So I would have thanked them also for making this happen. The silver and bronze medals went to Anshika and Hina Phogat of Haryana. In the men's individual competition, Aditya Negi did not disappoint the home crowd, winning the gold for Uttarakhand. Aditya. मतलब मेडल की उम्मीद थी बट आज गोल्ड आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। और मतलब इस जो मेरे गोल्ड के पीछे मतलब मेरे कोच का हाथ है, दयाल सिंह फरसवान। पहले मैं स्विमिंग करता था, फिर उन्होंने मुझे इस गेम के बारे में बताया और फिर मैंने ये गेम चला। Basant Tomar of Haryana won silver and Mayank Chapekar of Maharashtra won bronze. In the team event, Haryana's team comprising Anshika, Hina and Nibha won the gold. Here's Anshika. हम पहले स्विमर्स थे, फिर हमने रनिंग की भी प्रैक्टिस की और हमारे पास शूटिंग के लिए लेज़र पिस्टल नहीं है, तो हमारे शूट नहीं लग रहे थे। उसके बावजूद हमने रनिंग और स्विमिंग में इतना कोशिश किया और कवर की, तो हमारे फर्स्ट आ गए। The race for the semi-finals heated up in hockey at the VK Hockey Stadium, Haridwar. Our men on the AstroTurf were Manish Bhattacharya and Rajiv Ranjan Tiwari. वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम हरिद्वार में हॉकी में महिलाओं के सेमीफाइनल का रेस रोमांचक मोड़ पर आ गया है। आज का पहला मुकाबला जहां हरियाणा के लिए करो या मरो की स्थिति वाला था, तो वहीं मध्य प्रदेश भी जीत के साथ अपने लीग मैचों के सुखद समापन के लिए मैदान पर उतरी। पूरे मैच में हरियाणा अपने अटैक से मैच को अपने हिसाब से चलाया और पहला गोल हरियाणा की सोनिका ने मध्य प्रदेश के डिफेंस को भेदते हुए दाग दिया। मैच 59वें मिनट तक 2-2 की बराबरी पर चला, पर मैच का निर्णायक गोल हरियाणा की कप्तान रानी रामपाल ने आखिरी मिनट में दागा। काफी टफ मैच था दोनों टीम्स की तरफ से और आई थिंक हमने स्टार्टिंग से काफी चांसेस भी क्रिएट किए, बट मुझे लगता है कि हम और भी ज्यादा स्कोर कर सकते थे। दूसरा मैच तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक खेल रही थी, पर नतीजों पर निगाहें मध्य प्रदेश की टिकी हुई थी। हालांकि मैच पश्चिम बंगाल ने 2-0 से जीता, पर सेमीफाइनल का टिकट मध्य प्रदेश का कटा और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मैच के बाद पश्चिम बंगाल की
कप्तान अंजना डुंगडुंग। सर हम लोग का फॉरवर्ड में बहुत अच्छा मिला था, पर हम लोग ने उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। अंतिम मैच पूल बी में भी हलचल पैदा करने वाला था। महाराष्ट्र और मिजोरम दोनों जीत के साथ सेमीफाइनल का रास्ता प्रशस्त करने उतरी और इसका नजारा 7वें मिनट में देखने को मिला, जब महाराष्ट्र की तनुश्री ने गोल दागा, पर मिजोरम 39वें मिनट में बराबरी का गोल निकाला। अंतिम क्वार्टर में महाराष्ट्र ने 2 गोल करके मैच को अपने नाम किया और अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। मैच के बाद महाराष्ट्र की कप्तान प्रियंका, गर्ल्स ने फुल अपना 100% एफर्ट दिया। हमारे लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पुरुषों का पहला मैच पूल ए में 3 मैच खेलकर 2 अंक हासिल करने वाली उड़ीसा और 3 मैच खेलकर 1 अंक लेने वाली मणिपुर के बीच खेला गया। एक दूसरे की जीतोड़ कोशिश को नाकाम करती दोनों टीमें आगे बढ़ रही थी, तभी सर्किल के भीतर एक लाजवाब ड्रैग फ्लिक का सहारा लेकर उड़ीसा के कुजूर प्रसाद ने 21वें मिनट में पहला गोल दागकर गोया जीत की नींव रख दी। 27वें मिनट में दूसरा गोल कप्तान दीपसन तिर्की की स्टिक से पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आया और फिर 51वें मिनट में तीसरा गोल और 57वें मिनट में चौथा गोल दाग दिया। मणिपुर इससे उबर न सकी और 4-0 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर को रुख किया। कप्तान दीपसन तिर्की से हमारी बात हुई। जो कमी दिख रहा है वो सिर्फ डी पे दिख रहा है। ओवरऑल पूरा ग्राउंड हम लोग का अच्छा है, अटैकिंग वाइज हो ले लीजिए या फिर डिफेंसिव वाइज। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हॉकी का सर्वाधिक तेज गोल पूल ए के पुरुषों के दूसरे मुकाबले में देखने को आज मिला, जिसे कर्नाटक ने दागा। अभी सीटी बजी ही थी कि पहले मिनट में ही कर्नाटक के चेतन ने फील्ड गोल दाग दिया और इसके बाद जो जद्दोजहद दिखी उसमें मध्य प्रदेश ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कर्नाटक को 5-4 से शिकस्त तो दी, लेकिन तालिका में सर्वाधिक अंकों के कारण कर्नाटक सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया और सिर्फ 4 अंक ही अर्जित कर पाने की वजह से मध्य प्रदेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कप्तान अर्जुन शर्मा के चेहरे पर खुशी भी थी, निराशा भी थी। हम लोग हार पर भी कुछ नहीं मिलना था, ड्रॉ पर भी कुछ नहीं मिलना था, जीत कर जाते तो एक अलग खुशी से जाते। पूर्णतया औपचारिकता थी आज की तीसरी लड़ाई। अंकों के आधार पर तमिलनाडु की टीम को बाहर होना ही था। हरियाणा ने आज उसे 2-0 से शिकस्त दी, लेकिन हरियाणा अपना ये सफर सेमीफाइनल तक तय कर पाएगा या नहीं, ये निर्भर करेगा कल उसके महाराष्ट्र के साथ होने वाले मैच पर। Now to the sport that is the epitome of flexibility and grace. Khurshid Ahmed was at the Bhagirathi Hall of the Maharana Pratap Sports College, mesmerized by the beauty of gymnastics. The second day of gymnastics began with the qualification round of acrobatics. Yesterday it was based on balancing, while today's events were based on dynamics. Like yesterday, Maharashtra dominated the acrobatic gymnastics floor today also, showcasing thrilling display of athleticism, artistry and teamwork. In the women's team event, Maharashtra topped the table with 19.380 points, way ahead of West Bengal who scored 13.750 points. In the last edition of National Games, this team of Maharashtra was the champion in this event. माय नेम इज सोनाली बोराडे, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र टीम। इंडिया में बहुत कम जगह पे फ्लेक्सी फ्लोर है जहाँ पे एक्रोबैट्स परफॉर्म कर सकते हैं, सो बहुत अच्छा लगा है इंटरनेशनल इक्विपमेंट पे परफॉर्म करने के लिए। माय नेम इज आरना पाटिल, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ वुमेन्स ग्रुप फ्रॉम महाराष्ट्र। वी आर ऑन द फर्स्ट प्लेस राइट नाउ। आई होप विल बी ऑन द फर्स्ट प्लेस एज वेल एंड ब्रिंग मेडल फॉर महाराष्ट्र। माई सेल्फ अक्षता ढोकड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा आज सेट करके। आई होप कि हम कंबाइन में भी फर्स्ट हो सके और हमारा बेस्ट दे सके। In mixed pair acrobatics event 2, Maharashtra is in the top with the overall score of 35.970 despite slipping to the third rank in today's dynamic round. In dynamics, Kerala's mixed pair team got the highest point. This pair is practicing 8 hours daily for this national games, whose ultimate goal is to get a medal in Asian Games. My name is Fasil Imtiaz, dynamic rank first day. Morning 4 hours, in evening 4 hours. My ultimate goal is Asian Championship medal. My name is Parvati Vinayar, so pleasure to be first. In acrobatics women's pair event, the duo from Maharashtra Nikshita Suresh Khallare and Rutuja Dattatray Jagdale, continuing their brilliant form from yesterday, remain in the top in today's dynamic round 2. The only event of acrobatic gymnastics where Maharashtra is having a tough fight is men's pair event. After today's qualification round, Maharashtra has slipped to the third position in this event. Karnataka is leading the table while Chandigarh jumped up to second position. This pair from Chandigarh won the silver medal in the last national games. मेरा नाम देविंदर है। आज हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, हम ओवरऑल सेकंड में आ गए। परसों 11 को है कंबाइन का सेट है जो हमारा, और वो सेट हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेट है। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी हमारी, फर्स्ट में हम आ जाएंगे। माय नेम इज मोहित भंडारी। आज हमारा डायनेमिक का था, कल थर्ड से हम सेकंड पे आए हैं आज, तो 11 को हमारा कंबाइन सेट है फाइनल, जिसमें हम पूरा जोर लगाएंगे, अपना 100% देंगे पूरा।
At the Shivalik Hall in Rudrapur, handball action was gathering momentum. Shri Krishna and Nitish Arora report on the thrills and spills. आज ग्रुप स्टेज के मैचेस जारी रहे, जिनकी शुरुआत महिलाओं के ग्रुप ए में हुई। हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजस्थान। हिमाचल ने राजस्थान को 42-14 से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की और ग्रुप में टॉप पोजीशन। कोच स्नेहलता ने आकाशवाणी से ये कहा, हमारी लाइनअप ए बी में कोई फर्क नहीं है, हमारी दोनों ही टीमें इक्वल है। दूसरे नंबर पर रहने वाली राजस्थान की टीम के हौसले भी बुलंद हैं। तो क्या और कैसी रणनीति के साथ उतरेगी टीम? पूछे जाने पर टीम की कोच उमा ने बहुत ही सहज और सटीक जवाब दिया। हाउ टू पॉसिबल कि सर स्ट्रेटेजी में पहले लीक करूं? कल के सेमीफाइनल्स में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, यह तो समय ही बताएगा। तो सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली 4 टीमें हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। पुरुषों के ग्रुप स्टेज में जबरदस्त संघर्षपूर्ण मैचेस देखने को मिले। हरियाणा, छत्तीसगढ़ आमने सामने थे ग्रुप बी में पहली और दूसरी पोजीशन तय करने के लिए। हाफ टाइम पर स्कोर बराबरी पर अंततः छत्तीसगढ़ की टीम 22-29 से इस मैच को हार गई। कोच सुरेश कुमार, डे बाय डे हमारी टीम बढ़ते जा रहा। हरियाणा कोच हरी स्वरूप आफ्टर स्टॉर्मिंग इनटू सेमीफाइनल्स। अपोनेंट को यही है कि भी उन्होंने पहले भी हमारा जलवा देखा है, हम पहले भी गोल्डन टीम के साथ उतरे मैदान में। पुरुषों के आज ग्रुप ए का दिल्ली वर्सेस उत्तराखंड का मैच क्रूशियल था। उत्तराखंड हौसले और स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा। पैक्ड डिफेंस, फास्ट एंड पेनिट्रेटिव मूव्स यूजिंग द हाइट एडवांटेज ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स लाइक जर्सी नंबर 11 मनोज, जर्सी 5 भूपिंदर एंड जर्सी 17 सुमित। द स्ट्रेटेजी वर्कड वेरी वेल फॉर देम। ए सरप्राइज विन ऑफ 36/25 गोल्स। ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड के कोच सुनील सिंह पाठक, हमारी स्ट्रेटेजी थी, इनका जो मेन प्लेयर है जो सेंटर में खेलते हैं, तो हमने अपने विंग पूरे खोले, जिससे कि ये लोग डिफेंस में खोलेंगे तो हमारा फिर सेंटर से हमने अटैक कराया जाए। जो 2 टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं वो है सर्विसेज और उत्तराखंड। ग्रुप बी से हरियाणा और छत्तीसगढ़। महिलाओं के ग्रुप ए से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जबकि ग्रुप बी से हरियाणा और दिल्ली। Mountain biking is a sport meant for these hills, and things are only getting started in the discipline at Tranquil Sat Tal. KD Shukla gives us a brief overview. माउंटेन टेरेन बाइकिंग के मुकाबले सात ताल के गरुड़ ताल में आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ राइडर्स ने ट्रैक की जांच परख की। MTB के बारे में बताते हुए प्रतियोगिता निदेशक पिनाकी बैसाख, ये किया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, जिसके अंदर चढ़ाई रहती है, उतराई रहती है, और ये रोड के तरह प्लेन और स्मूथ नहीं होते हैं। इसमें पत्थर रहते हैं, ड्रॉप्स रहते हैं, जंप्स रहते हैं। तो इसमें एक राइडर्स की जो परफॉर्मेंस है डिपेंड्स करता है 2 चीजों के ऊपर। एक है कि पावर, क्योंकि पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, और पहाड़ से जब उतरते हैं उसकी स्किल की जांच की जाती है। तैयारी कर रहे सिक्किम के गणेश ने हमसे बात की। अभी तो सब उम्मीद हमारा स्ट्रांग है। अभी आर्मी और 2-3 बंदे बहुत तगड़े, तो उम्मीद तो लगाया। अभी ट्रेनिंग भी बढ़िया करके आए, तो कुछ करके जाएंगे। कर्नाटक से आए राइडर जीवन, क्लाइंबिंग अच्छा है और उतरते वक्त तो बहुत पूरा डाउन है, डिसेंट है। थोड़ा भी स्लिप हुआ तो हम गिर जाएंगे पूरा। उधर से गिरा तो चांसेस है डैमेज होने का बहुत चांस है। महाराष्ट्र से आई मनाली, ट्रैक लगभग हार्ड है, क्लाइंब सेशन ज्यादा है और डाउन सेशन थोड़ा कम है, लेकिन वो रिस्की है, तो डाउन सेशन पे संभाल के राइड करना चाहिए। 19 राज्यों के 89 राइडर्स 4 स्वर्ण पदकों के लिए 2.87 किलोमीटर के उबड़ खाबड़ रास्ते को सबसे पहले पूरा करने के लिए कल से अपना दमखम दिखाएंगे। Let's get on a bus and hop back to Dehradun, onto the parade ground where tennis singles and doubles of the individual events are currently on. Shahid Azmi gives us this report. देहरादून के परेड ग्राउंड पर लॉन टेनिस की स्पर्धाएं खेली जा रही हैं। आज महिला युगल और मिश्रित युगल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। महिला तथा पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच भी आज खेले गए। महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में गुजरात और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली। वहीं मिश्रित युगल वर्ग के खिताबी मुकाबले में तमिलनाडु और कर्नाटक की भिड़ंत होगी। महिला युगल वर्ग के पहले सेमीफाइनल में गुजरात की झील देसाई और वैदेही चौधरी ने हरियाणा की अंजलि राठी और अदिति त्यागी को 6-3, 6-0 से हराया। झील देसाई, आज का जो मैच था हमारा हरियाणा के प्लेयर्स के साथ था और उन्होंने कल अच्छा मैच जीता, तो हम लोग मेंटली अच्छी फाइट के लिए रेडी थे। तो हमने स्टार्टिंग से ही हम अलर्ट थे कि सारे बॉल्स वापस करने, सारे पॉइंट्स अच्छे से खेलने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में गुजरात की पूजा एंगले और आकांक्षा नित्तूरे की जोड़ी ने मेजबान उत्तराखंड को हराकर फाइनल मैच को महाराष्ट्र बनाम गुजरात बना दिया। मिश्रित युगल वर्ग में कर्नाटक की सोहा सादिक और निक्की पोनाचा की जोड़ी ने हरियाणा को हराकर फाइनल मैच में स्थान पक्का कर लिया। सुनते हैं सोहा सादिक को। बहुत अच्छा मैच था, ओपोनेंट्स ने अच्छा खेला। विद माय पार्टनर हु इज वेरी गुड रैंक राइट नाउ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेला दोनों। दूसरे मिश्रित युगल सेमीफाइनल मैच में तमिलनाडु की जोड़ी ने जीत दर्ज कर फाइनल मैच में कर्नाटक
से भिड़ंत पक्की कर ली। वहीं क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें तो कर्नाटक की अमोदनी नाइक ने हरियाणा की अदिति रावत को 4-6, 6-4, 6-3 से मात दी। अमोदनी नाइक बहुत अच्छा रहा, वो अच्छी खिलाड़ी है, उसने मुझे अपने लिमिट्स तक पुश किया और मैंने कैसे भी करके अच्छे खेल के मैच फिनिश कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। पुरुष एकल वर्ग में सर्विसेज के इशाक इकबाल ने पश्चिम बंगाल के नितिन कुमार सिन्हा को 6-4, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इशाक इकबाल कहते हैं, बहुत अच्छा मैच हुआ। हमारा क्वार्टर फाइनल अभी वेस्ट बंगाल के प्लेयर नितिन कुमार सिन्हा से था और मैं भी वेस्ट बंगाल का ही हूँ, तो एक स्टेट वर्सेस स्टेट है एक तरीके से। अच्छा मैच था, काफी कॉम्पिटिटिव मैच था, इंटेंसिटी बहुत हाई थी, दोनों ने एडी छोटी का जोर लगाया और बहुत खुश हूँ कि आज मैं विजेता बन सका। कल डबल्स का फाइनल मुकाबला खेलेंगे जी, बहुत बड़ी टक्कर है क्योंकि कर्नाटका का डबल्स टीम बहुत स्ट्रांग है और उनके एक प्लेयर जो हैं वो टॉप 100 में है वर्ल्ड के, तो काफ़ी टफ मुकाबला है और प्रज्वल की भी रैंक वर्ल्ड में 300 के करीब है वो डबल्स में, तो एक अच्छा मैच और एक टफ मैच है, लेकिन ज़रूर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारे सर्विसेज बोर्ड को गोल्ड लेके आएंगे। कर्नाटक के प्रज्वल देव ने सार्थक सुदेन को 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम 4 में स्थान बनाया, तो तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार ने हरियाणा के उदित कंबोज को मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। मनीष सुरेश कुमार, Yeah, I mean it was a very good match. I think now I'm very well used to the conditions and I'm very sharp. I mean he played really well the first few games, Udit. So yeah, I went down 1-3 and I was also down 15-40 on my serve. But yeah, glad that I was able to hold that game and yeah, I was able to find some momentum. And then the second set I broke him early and it was glad it went in my favor. आपको बता दें महिला और पुरुष युगल वर्ग के फाइनल मैच कल खेले जाएंगे। Now to another scenic locale. The Shivpuri beach in Rishikesh has been hosting beach events of all kinds from day one. Beach kabaddi is now going on in the Golden Sands. Saubhagya Rath and Florine Roche have been keeping vigil nearby to give us this report. The 30th National Games has brought more sports to the spotlight that includes beach kabaddi. The sport made its debut in the game for the first time in these National Games. The first day of the match saw 8 men and women's teams in action. The Shivpuri beach stood testimony to the fierce battle in sand for supremacy. The women's match between Uttarakhand and Chhattisgarh was a thriller, with Uttarakhand emerging victorious 46-44. Captain Pooja Mehra was ecstatic with the win. हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा किया और हमारे जो रेडर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। डिफेंस के बिना हम कुछ नहीं थे, कुछ गलतियां हुई हमसे भी, पर स्ट्रेटजी बनाई जिसकी वजह से हम मैच जीते। छत्तीसगढ़ कैप्टन शंभू मुस्कान remained optimistic despite the loss. हार जीत तो लगे ही रहता है, अब 2 टीम खेलेगी तो एक जीतेगी और एक हारेगी, पर हार से ज्यादा सीख मिलता है। हार से ही पता चलता है कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, उसे सुधारेंगे अगले मैच में। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किए, बहुत मेहनत किए। 8 टीम में आना भी बहुत बड़ी बात है कि 8 टीम के अंदर आना छत्तीसगढ़ को जीत के जाएंगे। Delhi dominated a hapless Karnataka in a one-sided match and the scores 73-16 said it all. Delhi captain Gayatri Sharma praised her team's performance. हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा खेली और यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। In another encounter, Haryana defeated Maharashtra 51-30. Uttar Pradesh also secured a convincing win against Himachal Pradesh. In the men's category, a strong Rajasthan team narrowly beat Maharashtra 47-43. Rajasthan captain Brijendra Singh Chaudhary beamed with joy after the win. महाराष्ट्र और राजस्थान का मैच बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक मैच चला, बहुत मजा आया यहाँ बीच में खेल के। दोनों तरफ पहाड़ी और उत्तराखंड ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा है, यहाँ पे मजा आ रहा खेलने में। Andhra Pradesh showcased its strength, outsmarting its opponent Himachal Pradesh, winning convincingly. In another first round match, an aggressive Haryana beat Uttar Pradesh. With 2 more matches remaining, teams will need to demonstrate exceptional skill and luck to qualify for the finals. Let's now head over to Chaukhamba Hall at the Manaskand Khel Parisar to get the details of the sport fencing. Who attacked and parried their way to glory in the men's foil and women's sabre events? Here's Sanjay Pandey with his report. इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में आज से तलवारबाजी या फेंसिंग की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गयी। 14 मीटर प्लेटफॉर्म जिसे पिस्ते बोला जाता है, इस पर देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज जोर आजमाइश करेंगे। फॉयल, सेबर और एपी स्पर्धाओं में कुल 12 स्वर्ण पदक दांव पर रहेंगे। आज मेंस फॉयल और वुमेन्स सेबर की प्रतियोगिता
प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। महिलाओं की सेबर प्रतियोगिता में भारत की तलवारबाज अकेली ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता भवानी देवी भी पूरे जोश में दिखी। ओलंपिक्स के बाद और कॉन्फिडेंस मुझे भी मिला है और बाकी सारे एथलीट्स को भी मिला है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन की नंबर्स इंप्रूव हो गए नेशनल्स में भी और हर स्टेट में भी। पुरुषों की फॉइल प्रतियोगिता और महिलाओं की सेबर प्रतियोगिताओं के मुकाबले देर रात तक जारी रहेंगे। Also at MPSC at the Kanchenjunga Hall, netball was reaching its finale and 2 medals were up for grabs. There was thrill in the air and strategic battles aplenty. Sankalp Mishra has the details. रजत जयंती खेल परिसर के कंचनजंगा हॉल में आज नेटबॉल ट्रेडिशनल पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धा के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का फैसला हुआ। पुरुषों के कांस्य पदक के लिए हिमाचल और दिल्ली के बीच कांटे की टक्कर में स्कोर 45-45 से टाई हुआ और दोनों ही टीम्स को कांस्य पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। पुरुषों के गोल्ड के लिए उत्तराखंड और हरियाणा के बीच के फाइनल्स का मैच इतनी एनर्जी और गति से भरा हुआ था कि पूरा हॉल अपने समर्थकों के नारे से गूंज उठा और 38वें राष्ट्रीय खेल के नेटबॉल का हाईएस्ट स्कोर बना, जहां हरियाणा ने उत्तराखंड को 74-71 के शानदार मुकाबले में शिकस्त दी। इस जीत पर हरियाणा के कप्तान दीपक अत्री। जब फर्स्ट क्वार्टर हुआ तो हमारे पर लीड थी, फिर हमारी टीम का टाइम आउट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमने टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया और हमने थोड़ा और जोर लगाया। उसके लिए हमने लगातार और मजबूत किया टीम को और उसके बाद हमने 3 पॉइंट से गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या हासिल था रजत पदक विजेता टीम उत्तराखंड के गोल अटैकर सुरेंद्र कुमाई का? थोड़ा सा क्या हुआ, गेम फास्ट तो चल रहा था, लेकिन हमारे प्लेयर ने रिंग के अंदर बॉल डाली। उसके बाद जो रिंग के अंदर वो घूम के बॉल बाहर को निकल गई और वहाँ पे रिबाउंड पकड़ लिया अपोजिशन के खिलाड़ी जीके ने। से वो बॉल वापस आए तो फिर से यहाँ से लीड बननी शुरू हो गई तीसरे क्वार्टर से, तो वो कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पाए हम, जिस कारण की 3 की लीड से हरियाणा ने जीत दर्ज की। बधाई के पात्र है। वहीं महिलाओं की ब्रॉन्ज मेडल की आजमाइश में कई उतार चढ़ाव के बावजूद टीम उत्तराखंड ने चौथे क्वार्टर में वापसी कर तेलंगाना से 42-42 पर हिसाब बराबर कर संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। इस जीत पर टीम उत्तराखंड से सेंटर पोजीशन पर खेलने वाली चेतना। बहुत खुशी है हमें ब्रॉन्ज मेडल की। क्या था कि तेलंगाना टीम हमारे लिए बेस्ट थी, क्योंकि उनके पास भी हाइट एडवांटेज नहीं था और हमारे पास भी नहीं था। दैट वाज वेरी गुड। वहीं महिलाओं के गोल्ड मेडल का मुकाबला राजस्थान और हरियाणा के बीच खेला गया, जहां राजस्थान अपनी हाइट के एडवांटेज को भुना नहीं पाई और हरियाणा से 57-55 से हारकर रजत पदक तक अपना सफर तय किया। रजत पदक विजेता राजस्थान की कप्तान श्रुति शर्मा। मैच काफी टफ था। लास्ट के 2 मिनट में मैच काफी अप डाउन में चला, कभी वो लीड पे, कभी हम लीड पे, कभी इक्वल चल रहा है क्वार्टर में, बट एट द एंड लास्ट के 2 मिनट में हमारे 1-2 मिस हुए और उनके काउंट हो गए, तो थोड़ा हम लोग 2 पॉइंट से हार गए। हरियाणा की शानदार जीत पर गोल शूटर नेहा। फर्स्ट टाइम तो देखो प्रेशर होता ही है, लेकिन फिर हमने थोड़ा धीरे स्लो गेम रखा अपना बहुत ही। Mahendra Singh Lalas kept track of the top spins and drop shots for us in table tennis. 38वें राष्ट्रीय खेलों के टेबल टेनिस के मुकाबले आज देहरादून में शुरू हुए। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीमों के बीच रोमांचक स्पर्धाएं देखने को मिली। वहीं महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली की टीमों के बीच में कड़ी स्पर्धाएं हुई। सुतीर्था मुखर्जी, अयिका मुखर्जी और मौमा दास जैसे खिलाड़ियों से सुसज्जित पश्चिम बंगाल की महिला टीम ने आज अपने दोनों मैच हरियाणा और गुजरात को हराकर जीते, लेकिन हरियाणा की पृथ्वी चक्रवर्ती ने एशियाई खेलों की पदक विजेता अयिका मुखर्जी को हराकर ये साबित किया कि प्रतियोगिता कितनी कड़ी है। ग्रेट फीलिंग होता है, ऑब्वियसली वो ओलंपियन है तो बहुत ही अच्छा लगा और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतूंगी। क्या कहती है अयिका? I think I will take a bit of time because the ball is different, the table is different. I'm just coming from Singapore smash. उत्तराखंड की 10 साल की ख्याति पांडे अनुभवी खिलाड़ियों से अपने मैच तो हार बैठी, लेकिन उनका संघर्ष और जज्बा देखते ही बनता था। 10 साल की ख्याति शायद इन खेलों की सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ियों में से एक है। अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेहनत करनी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे 10-6 हो या 10-4 हो, आपको हर पॉइंट के लिए फाइट करना चाहिए। उधर पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की कड़ी चुनौती के बाद भी तमिलनाडु की टीम ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। क्या कहते हैं देश के शीर्ष खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन? Playing for Tamil Nadu after 10 years. We won gold in 2015, so I hope we can reclaim that gold after a decade. एंथनी अमलराज को कड़ी टक्कर में उत्तर प्रदेश के दिव्यांश श्रीवास्तव ने जरूर हराया, लेकिन वे पदक के प्रति आश्वस्त हैं। Hope we get better. Me and Satyam playing doubles also, so we have already won so many medals for India, like Commonwealth and Australian Open. महिला वर्ग की नई राष्ट्रीय चैंपियन महाराष्ट्र की दिया चिताड़े अपने दोनों मैच जीतने के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए, अमेजिंग फीलिंग है, मतलब नेशनल चैंपियनशिप में जीती, बहुत ही खुश थी और ये नेशनल गेम्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑफ कोर्स टफ टूर्नामेंट है, पर हम ट्राई करेंगे कि गोल्ड जीते।
Dipankar Mishra gives us the latest medals tally. 38वें राष्ट्रीय खेलों की नवीनतम पदक तालिका इस प्रकार है। 42 स्वर्ण, 16 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ सर्विसेज अभी भी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसके पीछे है कर्नाटक जो 31 स्वर्ण, 13 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर कुल 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। महाराष्ट्र के धुरंधरों ने 29 स्वर्ण, 42 रजत और 47 कांस्य पदकों के साथ कुल 118 पदक अपने नाम किए हैं और महाराष्ट्र को तीसरे स्थान पर काबिज रखा है। 23 स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा जहां चौथे स्थान पर है, वहीं 20 स्वर्ण पदकों के साथ मध्य प्रदेश ने शीर्ष 5 में अपनी जगह बना रखी है। Another day full of cuts and glory, joy and despair. That's what sports is all about. Life is all about. Stay tuned to Akashvani for all the latest updates of the 38th National Games and tune in tomorrow at the same time for the next edition of this program. It's time for me, Shaurya Chaudhary, to bid adieu. Have a good night. Scripted and narrated by Shaurya Chaudhary. Assistance in production Dipankar Mishra. Produced by Mobeen Khan and Praveen Chand. 38th National Games, Uttarakhand. You just heard our daily highlights of the 38th National Games 2025. This program was produced by Akashvani Central Production Team at Dehradun.